الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تطوع خیرا فهو خیر له صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ پیارے ویورز، آپ سب کا مصباحی اکیڈمی آفیشیل چینل پہ خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج آپ تمامی حضرات کو یہ بتاؤں گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، دن بھر کھانے پینے سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہے، ہمارا چہرہ جو ہے چہرے پہ بھوک کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، پیاس سے ہمارا حلق سوکھ جاتا ہے، ہمارے ہونٹوں پہ جو ہے پیاس کی شدت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، پیارے ویورز، یہ ہم تمامی حضرات کو احساس ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو کہیں کوئی ایسا نہ کام کر جائیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے، روزہ ٹوٹ جائے۔ تو پیارے ناظرین، ہمیں اس بات کو جو ہے سوچنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ہماری لائف میں کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ باقی رہا یا ٹوٹ گیا۔ تو پیارے ناظرین، انہی چیزوں کے بارے میں، انہی مسئلوں کے بارے میں آپ تمامی حضرات کو جانیں گے، اس لیے آخر تک بنے رہیے، ہمارے ویڈیو کو پورا واچ کیجیے تاکہ آپ کو انفارمیٹیو نالج آپ کو ملے اور بہت ساری باتیں جو ہے آپ سیکھ کر کے جائیں۔ کچھ ایسے مسئلے بھی ہوں گے جو زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے آپ کی لائف میں، جس کو آپ ہلکے میں لے رہے ہوں گے، لیکن وہ مسئلہ آپ کے لیے کافی زیادہ ضروری ہوگا۔ تو آخر تک بنے رہیے اور اپنے معلومات میں اضافہ کیجیے۔ ڈیئر ویورز، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ جاننا ہے کہ جو بات آپ سیکھ رہے ہیں اس کا ثبوت آپ کے پاس ہے یا نہیں، یا جسے آپ باتیں سیکھ رہے ہیں وہ آپ کو ایویڈنس پرووائڈ کر رہا ہے یا نہیں، ثبوت پرووائڈ کر رہا ہے یا نہیں۔ تو پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں ہر ایک بات کا ایویڈنس آپ کو دیا جائے گا، جو اوپر شو ہو رہا ہے آپ اس میں پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ جو کام ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں۔ تو ان میں سے کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو آپ کو معلوم ہوگا، اور کچھ ایسی بھی باتیں ہوں گی جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جو زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ تو ان باتوں پہ جو ہے زیادہ ہم فوکس کریں گے اور اس کو ایکسپلین کریں گے۔ تو پیارے ناظرین، یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، کھانے پینے یا ہم بستری یعنی فزیکل ریلیشن شپ ود وائف ہے نا، اس سے روزہ جو ہے جاتا رہتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ یعنی اس میں ایک کنڈیشن لگا دیا گیا، اس میں ایک شرط لگا دی گئی کہ اگر روزہ دار ہونا یاد ہو تب جو ہے کھانا پینا یا فزیکل ریلیشن شپ بنانے سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، جب یاد ہو تب۔ اور جب اگر یاد نہ ہو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھولے سے کھانا کھا لے یا پانی پی لے تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، بلکہ روزہ کو مکمل کرے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا۔ تو پیارے ناظرین، روزہ یاد نہ ہونے کی صورت میں اگر یہ ہوتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے۔ پیارے ناظرین، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود تو بھٹک کرتے ہیں، دوسروں لوگوں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، خود تو روزے نہیں رکھتے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے بہت سارے نکتے نکالتے ہیں، بہت سارے جو ہے کوشچنیبل پوائنٹس نکالتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے کوشچن کیا جائے اور اس میں جو ہے اپنی بات کو جو ہے ثابت کیا جائے۔ تو پیارے ناظرین، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ بیڑی سگریٹ پینے سے روزہ جو ہے کیوں ٹوٹے گا، جبکہ ہم دھواں باہر پھینک دیں گے، جب دھواں ہم باہر پھینک دیں گے تو پھر ہمارا روزہ کیوں ٹوٹے گا۔ تو پیارے ویورز، آپ یہ بات جان لیں کہ حقہ سگریٹ ہے نا وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں اور اس میں اس کا جو دھواں ہوتا ہے، جو نکلتا ہے اسموک، پیارے اسلامی بھائیوں، وہ اسموک جو ہے ہمارے پھیپھڑے تک جو ہے جاتا ہے،
फेफड़े तक जाता है, क्योंकि धुआं जो निकलता है उससे वो क्या होता है, वो गर्म होता है, जो वेपोरेट हो करके हमारे हलक के नीचे चला जाता है, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। तो कोई ये गुमान ना करे कि बीड़ी सिगरेट पीने से रोज़ा नहीं टूटता। प्यारे नाज़रीन, तीसरी चीज़ ये है जिससे रोज़ा टूट जाता है, वो है पान और तंबाकू का खाना। अगर कोई आदमी ये सोचे कि मैं पान खाऊंगा और स्पाइट यानी थूक जो आता है वो हम बाहर फेंक देंगे, तो बार बार भले ही थूक क्यों ना फेंकता रहे, लेकिन तंबाकू और पान के भी कुछ ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो हलक तक पहुंच जाते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, इससे भी जो है रोज़ा टूट जाता है। तो कोई पान खाने वाला या तंबाकू खाने वाला जो स्मोकिंग करते हो ये ना सोचे कि इससे रोज़ा नहीं टूट। चौथा चीज़ जिससे रोज़ा टूट जाता है वो है ये है कि दांतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर या ज़्यादा थी, उसे खा गए, या कम ही थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली तो रोज़ा टूट गया। देयर आर टू कंडीशंस इन दिस पॉइंट। इस पॉइंट में दो कंडीशंस को जिक्र किया गया है। पहला कंडीशन ये है कि अगर मुंह के अंदर दांतों में अगर चने के बराबर या चना से ज़्यादा, चना यानी ग्राम जो होता है, तो चना या चने से ज़्यादा यानी इसके मिक़दार में अगर कोई चीज़ दांतों में अगर फंसा हुआ है और उसे हम निगल गए तो रोज़ा टूट जाएगा, इससे रोज़ा टूट जाएगा। और जो दूसरी कंडीशन है जिसका जिक्र किया है वो ये है कि अगर चने से छोटा ही अगर कोई चीज़ है, कोई सब्सटेंस है मुंह में दांत में जो फंसा हुआ है, तो चने से अगर छोटा है उसको अगर हम निकाल करके फिर से अगर खा लिए तो रोज़ा टूट जाएगा। पहली कंडीशन में क्या था कि चना के बराबर हो या चना से ज़्यादा हो कोई चीज़, तो निगल जाने से यानी मुंह के अंदर ही है और उधर से ही निकल गया तो रोज़ा टूट गया। और दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में ये है कि अगर चने से अगर वो छोटी चीज़ है फिर हम बाहर निकाल लिए, तो जब वो चीज़ बाहर निकल गई तो अब बाहर आ गई, और जब अब हम उसे अंदर ले रहे हैं तो उसे जो है खाना कहा जाएगा। तो खाने की चीज़ चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, अगर हम बाहर से अंदर ले रहे हैं तो फिर उस सूरत में चाहे वो चीज़ छोटी से ही छोटी क्यों ना हो, स्मॉलेस्ट थिंग ही क्यों ना हो, उससे भी जो रोज़ा जो है टूट जाएगा। डियर व्यूअर्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट, पांचवा पॉइंट ये है कि दांतों से खून निकल कर हलक से नीचे उतरा, दांतों से खून निकला और हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा या बराबर या कम था मगर इसका मज़ा हलक में महसूस हुआ तो रोज़ा जाता रहा, और अगर कम था और मज़ा भी हलक में महसूस ना हुआ तो रोज़ा ना गया। प्यारे नाज़रीन, इसमें इस पॉइंट में ये बताया गया कि दांत से खून निकला और निकलने के बाद हलक तक पहुंच गया। अब खून जो है थूक से ज़्यादा था या बराबर था या थूक से कम था, लेकिन यानी इन तीनों कंडीशन में थूक से ज़्यादा था या थूक से कम था या थूक के बराबर था। देयर आर थ्री कंडीशंस, इक्वल और कम और ज़्यादा, यानी तीन कंडीशन है इसमें। तो तीनों कंडीशन में अगर टेस्ट, खून का टेस्ट अगर पता चल गया तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर कम था और मज़ा भी हलक में महसूस ना हुआ तो रोज़ा नहीं गया। यानी खून अगर कम था थूक से और मज़ा महसूस नहीं हुआ हलक तक तो रोज़ा नहीं टूटेगा। तो प्यारे नाज़रीन, इस बात का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि जिनको दांत की बीमारी हो जाती है तो वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। खून वगैरह निकलने की दांत से जो बीमारी हो जाती है तो उसमें बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि थोड़ा सा भी खून निकल जाता है तो सोचते हैं कि हमारा रोज़ा जो है चला गया है, जबकि इसमें तीन कंडीशंस हैं। तीन कंडीशंस क्या हैं कि खून अगर ज़्यादा हो थूक से, यानी खून जो है स्पाइट से ज़्यादा हो या स्पाइट से कम हो या फिर स्पाइट के बराबर हो। तो तीनों कंडीशन में अगर टेस्ट पता चल रहा है तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर टेस्ट नहीं पता चल रहा है प्यारे इस्लामी भाइयों तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ये कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए कि थोड़ा सा भी अगर खून निकलता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों से पूछने लगते हैं। जाहिर सी बात है, पूछना चाहिए। तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि इस मसले को याद रखना है कि इस सूरत में जो है रोज़ा नहीं टूटता है जब टेस्ट पता न चले। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, कुल्ली कर रहे थे, यानी कोई कुल्ली कर रहा था, बिला कस्द यानी बगैर इरादे के पानी हलक से उतर गया, यानी पानी नीचे हलक से उतारने का कोई इंटेंशन नहीं था कि हलक से पानी नीचे उतारना है, लेकिन पानी
बगैर इंटेंशन के, बगैर इरादे के हलक से नीचे उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया, नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग को चढ़ गया, यानी दिमाग तक पानी चला गया, तो रोज़ा ख़त्म हो गया। लेकिन देयर इज़ अ कंडीशन, इसमें भी एक कंडीशन है, और वो क्या है कि जबकि रोज़ादार होना भूल गया हो तो न ही टूटेगा। और अगरचे यूं ही रोज़ेदार की तरफ किसी ने कोई चीज़ फेंकी, वो उसके हलक में चली गई, यानी किसी ने कोई चीज़ फेंकी, वो मुंह खोले हुआ था, अब वो चीज़ उसके मुंह में चली गई, वो निगल गया, तो इससे भी रोज़ा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट डियर व्यूअर्स, 7th पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू नो दैट वोमिटिंग से रोज़ा टूटता है या नहीं, और वोमिटिंग से अगर रोज़ा टूटता है तो किस कंडीशन में टूटता है। तो प्यारे व्यूअर्स, बहुत सारे लोग होंगे, देयर आर मेनी दे डोंट नो दिस पॉइंट। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस पॉइंट के बारे में नहीं जानते होंगे कि कै किस कंडीशन में होता है तो रोज़ा टूट जाता है, और कै किस कंडीशन में होता है तो रोज़ा टूट जाता है, और किस कंडीशन में होता है तो नहीं टूटता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि थोड़ा सा भी अगर कै होता है तो वो सोचते हैं कि मेरा रोज़ा टूट गया। लेकिन डियर व्यूअर्स, ये वो लोग होते हैं कि जो इस बात से अननोन होते हैं, जिनको मालूम नहीं होता है कि कै की क्या सूरतें हैं, क्या कंडीशन से हैं कि जिसमें रोज़ा टूट जाएगा। थोड़ा सा कै हुआ, इंसान सोचता है कि रोज़ा टूट गया और फिर वो खाना खा लेते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आपको इस बात पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट योर लाइफ दैट यू हैव टू नो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको जानना है कि कै किस सूरत में होने से रोज़ा, इरादतन इंटेंशन के साथ अगर कै हो रहा है तो मुंह भर होने वाली कै से भी रोज़ा उस सूरत में, यानी उस कंडीशन में टूटेगा जब कै में खाना या पानी या सफरा यानी कड़वा पानी या खून, तो ये कंडीशन है इसकी कि अगर कोई वोमिटिंग करता है और वोमिटिंग करते वक्त अगर खाना या पानी आता है और सफरा यानी कड़वापन यानी कड़वा पानी अगर निकलता है या खून निकलता है, तो इस कंडीशन में रोज़ा टूट जाएगा। वरना अगर सिर्फ बलगम की अगर कै हो तो प्यारे व्यूअर्स, इससे रोज़ा। डियर व्यूअर्स, यू हैव लिसन्ड इन दिस पॉइंट दैट मुंह भर कै, डू यू नो व्हाट इज़ मुंह भर कै? मुंह भर कै क्या होता है जिससे रोज़ा टूट जाता है? तो डियर व्यूअर्स, मुंह भर कै, इसके डिफिनेशन ये है कि मुंह भर कै का मतलब होता है कि इस तरह कै हो, इस तरह वोमिटिंग हो कि जिसको रोकना मुश्किल हो, यानी तकल्लुफ़ के बगैर रोका ना जा सके, यानी उसको रोकने में तकलीफ़ हो, तो इसे कहते हैं मुंह भर कै। और इसके साथ अगर खाना, पानी या सफरा यानी कड़वा पानी या खून निकलता है तो इस कंडीशन में रोज़ा। तो डियर व्यूअर्स, these are the most important point that you have to know for your। ये सारे ऐसे पॉइंट थे जिसको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर आप बालिग हैं, आकिल हैं, मुसलमान हैं, तो आपके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है। और रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसका ताल्लुक़ अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है, और अल्लाह तबारक ताला इसकी जज़ा देता है। और इसकी फ़जीलत के बारे में हमने वीडियो बनाया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के आप वीडियोस को देखिए। और प्यारे नाज़रीन, अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई क्वेरीज हो, आपके माइंड में कोई सवाल हो, तो आप सवाल कीजिए ताकि हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएं। तो मोहम्मद हनीफ रज़ा मिसवाही को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।